Hi, good morning, my dear student. Today we are going to restart your chapter Central Islamic Land. In this chapter, today we will discuss the changes, the specific changes, which type of new type of text that was introduced in Islam, and what was their role to improve the Islamic culture. These are all points we will try to discuss in this class. If you have remember, I taught you that the Abbasid and Umayyad Khalifas, they promoted the Christians, authors, translators to translate the various languages book in Arabic, Aristotle books, Ptolemy book, and Indian also, Sanskrit text also translated in Arabic language to enrich the Arabic intellectuality. My dear, at the beginning of the 11th century, Ghazni became the center of Persian literary life. Poets were naturally attracted by the brilliance of the imperial court rulers to realize the importance of patronizing art and learning for enhancing their prestige. Muhammad of Ghazni gathered around him a group of poets who composed anthology, divan, and epic poetry. Mathanvi, the most outstanding was the Firdausi, who took 30 years to complete the Sahnama, Book of the King, an epic of 50,000 couplets, which has been a manuscript of Islamic literature. The Sahnama is a collection of tradition and legends. The most popular being that of Rustam, which poetically depicts Iran from creation up until the Arab conquest. It was in keeping with the Ghaznavid traditions that Persian later became the language of administration and culture in India. Here, author want to explain you development in writings. Here, author want to teach you that Divan and Mathanvi, that type of the literature that was come in existence. 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया। पर्शियन लिटरेचर का एक जीवंत केंद्र बना। गजनी कवि, पोएट स्वाभाविक रूप से ही शाही दरबारों की चमक दमक से आकर्षित होते थे। शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने के महत्व को समझ लिया था। गजनी के महमूद ने अपने चारों ओर कवियों का एक ऐसा समूह एकत्र कर लिया था जिन्होंने काव्य संग्रहों, दीवान और महाकाव्यों मथनवी की रचना की। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध फिरदौसी, जिन्हें शाहनामा को पूरा किया था और इसको पूरा करने में उनको 30 वर्ष लग गए। शाहनामा में कुल 50,000 पद हैं और यह इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। शाहनामा परंपराओं और आख्यानों का संग्रह है, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अरबों की विजय तक ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में किया गया है। यह गजनवी परंपरा के अनुरूप ही था कि भारत में फारसी प्रशासन और संस्कृत की भाषा फारसी बन गई। आइडिया, यहाँ मैंने आपसे कुछ बातें बताई। मैंने कहा आपसे कि गजनी वो जगह थी जो अब
नए प्रकार के परिवर्तनों का केंद्र बना। गजनी कि महमूद गजनवी ने अपने दरबार में विद्वानों का सम्मान किया और विद्वानों ने महमूद गजनवी की सम्मान में बहुत सारे काव्य संग्रह, दीवान और महाकाव्य मथनवी की रचना की। इन्हीं मथनवियों में सबसे प्रसिद्ध मथनवी थी फिरदौसी का शाहनामा, बुक ऑफ किंग, जिसमें 50,000 कपलेट्स हैं। 50,000 इस शाहनामा में पद हैं और यह इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इस्लामिक लिटरेचर के लिए फारसी, पर्शियन लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज के रूप में धीरे धीरे उभर रही थी। शाहनामा में राजाओं की कहानियों का उल्लेख है, कई सारे राजा, और सबसे प्रसिद्ध कहानी है रुस्तम की। ओके माय डियर, इफ यू विल रीड द अदर टॉपिक्स, अदर पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, you will find out that the administration and culture in India, the catalog Kitab al-Fisrif of Baghdad, bookseller Ibn Nadim describe a large number of works written in the prose for the moral education and the amusement of readers. The older of these is collection of animal fables called Kitabul Diman, the name of two jackals, Kalila wa Dimna. Collection of animal fables called Kalila wa Dimna, the name of two jackals who are the leading characters, which is the Arabic translation of the Pahlavi version of Panchatantra. The most widespread and the lasting literary work are the story of the hero adventurers such as Alexander and Sindbad, are those of unhappy lovers such as Qais, known as Majnoon, or the Madman, madman. These have developed over the centuries into oral and written traditions. The 1001 Night is another collection of stories told by single narrators. Shahrazad to her husband night after night. The collection was originally in Indo-Persian and was translated into Arabic in Baghdad in the 8th century. More stories were later added in Cairo during the Mamluk period. These stories depict human beings of different types: generous, stupid, the gullible, the crafty, and were told to educate and entertain. In his Kitab al-Bukhala, Book of Misers, Jahiz of Basra collected the amusing, the encoded about the mistress of the analysis Crete. My dear, बगदाद की एक पुस्तक विक्रेता का नाम लेता है, कहता है बगदाद का एक पुस्तक विक्रेता था इब्न नदीम। इब्न नदीम ने 650 बुक्स या इससे भी ज़्यादा, कहता है कि बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम की मृत्यु की सूची, जो उनकी मृत्यु हुई 1895, उसके पहले उन्होंने किताबों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की, किताब अल फहरिस्त के नाम से। उनमें ऐसी बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों की नैतिक शिक्षा और उनके मनोरंजन के लिए लिखी गई थी।
इनमें सबसे पुरानी पुस्तक जानवरों की कहानियों का संग्रह है जिसका नाम कलीला व दिमना है। 2 जयकाल हैं, 2 गिदड़ों की कहानी है। ये पुस्तक पंचतंत्र के पहलवी संस्करण का अरबी अनुवाद है। सबसे अधिक प्रचलित और स्थायी रचना वीर साहसियों की कहानियां हैं, जैसे अल सिकंदर और सिंदबाद, और दुखी प्रेमियों जैसे कायस, जिससे मजनू यानी कि पागल व्यक्ति कहा जाता था। ये कहानियां कई शताब्दियों में मौखिक अथवा लिखित परंपरा में ये कहानियां कई शताब्दियों में मौखिक अथवा लिखित रूप में विकसित हुई। 1001 रातें, 1001 नाइट्स कहानियों का एक दूसरा संग्रह है। कलीला और दिमना के बाद 1001 रातें, ये कहानियां एक ही व्यक्ति के द्वारा, सरजाद के द्वारा अपने पति को एक के बाद दूसरी रात को सुनाई गई थी। ये संग्रह मूल रूप से भारतीय फारसी भाषा में था और बगदाद में इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया गया। बाद में मामलुक काल में काहिरा में इनमें और कहानियाँ जोड़ दी गई। ये कहानियाँ विभिन्न किस्मों के मनुष्य के बारे में, जैसे कितने प्रकार के मनुष्य हैं, कुछ उदार मनुष्य, कुछ मूर्ख मनुष्य, कुछ भोले भाले मनुष्य, कुछ धूर्त मनुष्यों का ये चित्रण करती है और शिक्षा देने और मनोरंजन करने के लिए सुनाई गई थी। बसरा के जहीज ने अपनी पुस्तक किताब अल बुखाला में कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इकट्ठे किए थे और लालच का विश्लेषण किया था। 9वीं सेंचुरी तक अदब के दायरे का विस्तार किया गया और इसमें जीवनियाँ, बायोग्राफीज, आचार संहिताओं, अखलाक, सोशल कंडक्ट, राजकुमारों की हसन कला की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। पढ़े लिखे मुसलमानों में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह स्थापित थी। इतिहास की पुस्तकें विद्वान और विद्यार्थियों द्वारा, उनके अलावा अनेक पढ़े लिखे लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी। इतिहास शासकों और अधिकारियों के लिए किसी वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कारनामों और उपलब्धियों का अच्छा विवरण और प्रशासन की तकनीकी के उदाहरण प्रस्तुत करता था। इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ बालाधुरी और अनसब अल अशरफ, सावंतों की वंशावलियाँ, और ताबरी की तारीख अल रसूल वल मुल्क, पैगंबर और राजाओं का इतिहास, में समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया गया। इससे इस्लामी काल केंद्र बिंदु है। स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास खिलाफत के विघटन के बाद हुआ। इस्लामी जगत की एकता और विविधता के अन्वेषण के लिए फारसी में वंशों, नगरों और प्रदेश के बारे में पुस्तकें लिखी गई। भूगोल और यात्रा वृत्तांत रिहला अदब की एक विशेष विधा बन गई। इनमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों तथा यात्रियों के विचारों और कथनों को शामिल किया गया। गणितीय भूगोल में बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समानांतर हमारे 3 महाद्वीपों के अनुरूप 7 किस्म की जलवायु में विभाजित किया गया। प्रत्येक स्तर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया। मुकद्दसी का वर्णनात्मक भूगोल, एहसान अल तक़सीम तथा सर्वोत्तम विश्व के सभी देशों के लोगों की तुलनात्मक अध्ययन है और विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। ये बुक जो एहसान अल तक़सीम है, ये विविध प्रांतों में रहने वाले लोगों की जीवनियों का एक अच्छा विवरण है। माय डियर, व्हाट आई एम टेलिंग, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। और फिर एक नए तरीके से प्रत्येक शहर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण एक ज्योग्राफिकल पैटर्न से किया गया। विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए अल मसूदी ने 943 में एक पुस्तक मुरूज अल धहाब में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया।
अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक मालिल हिंद भारत का इतिहास है। 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया के बारे में देखने और जानने का सबसे बड़ा प्रयास था। एक अन्य सांस्कृतिक परंपरा में क्या चीज़ कीमती है, क्या चीज़ जरूरी है, इसके बारे में लिखना एक सबसे महत्वपूर्ण विधा के रूप में माना गया। माय डियर, आई होप you are getting understand having read this paragraph. The catalog, अब थोड़ा ऊपर से देखिए। The catalog, किताब अल फेरिस्त ऑफ बगदाद बुक सेलर Ibn Nadim describe the large number of the work written prose, moral education and the amusement. These points also discussed by me. Some important books which is very useful for the Arabians, the 1001 Night, Qalila Dimna and Kitab al-Bukhala, Jihaz of Basra. These are the books which is very important, which enrich the Islamic culture. Okay, the tradition history was well established in the Muslim literature, Muslim societies. History book were read by the scholars, students. So, my dear, what I am telling, the tradition of history writing as well established in the literate Muslim society. History books were read by scholars and students as well as by the broader literate public. Popular and official history provided a good record of the glorious and achievements of the dynasties as well as the examples of the technique of administrations of the major historic work. Ans of Asraf, geological of the novels of Baldahuri, the Tariq al-Rusul wal Malik, history of Prophet and King of Tabri. The whole human history was related with the Islamic period as a focal point. The traditions of local history writing developed with the breakup of the caliphates. Books were written in Persian about dynasties, cities, or the religious, or explored the unity of variety to the world of Islam. Geography and travel, Rihla, the constituted the special branch of Adab. These combined knowledge from Greek, Iranian, and Indian books with the observation of merchants and travelers in the mathematical geography. The inhabitants' world was divided into 7 claims, singular, ecleme, parallel with the equator, corresponding in our 3 continents. The exact position of each city was determined astronomically. Makkadis, descriptive geography, Ahsan al-Taqsim, the best division as comparative study of the countries and people of the world, and the treasure true of stoic curiosity. Golden Meadows of the Masudi, written in 943, to illustrate
the wide variety of world culture. Al-Biruni's famous Tahqiq Ma Lil Hind, Muslim writer to book, Muslim writer to look beyond the world of Islam and observe what was the value in another cultural tradition. By the 10th century, an Islamic world had emerged which was easily recognizingly by the traveled religious builders. Religious buildings were the greatest external symbol of his world. Mosque, shrine, and tomb from Spain to Central Asia showed the same basic design: arched domes, minarets of open courtyards, and expressed the spiritual and the practical needs of Muslims. In the first Islamic centuries, the mosque acquired a distinct architectural form, roof supported by pillars, which transcended the regional variations. The mosque had an open courtyard, sohan, where the fountain or pond was placed, leading to the vaulated hall, which could accommodate long lines of worshippers, the prayers leaders. Two special features of the located inside the hall: a night mihrab and the well indicating the directions of Makkah, Qibla, and the pulpit, the minbar, pronounced the mimbar, from where the sermons were delivered during noon prayers on Friday. My dear, in this paragraph, this is very important and इंटरेस्टिंग कि 10th सेंचुरी तक एक ऐसी इस्लामिक दुनिया उभर कर सामने आई जिसमें यात्री आसानी से पहचान सकते थे धार्मिक इमारतें, इस सुंदर इस दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थी। स्पेन के मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादत गाह और मकबरों की बुनियादी नमूनों का एक जैसा मेहराब, गुंबद, मीनार और खुले जो सहन और ये इमारतें मुसलमानों के आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज़रूरतों को अभिव्यक्त करती थी। ऐसी बिल्डिंगें बनने लगीं जो बिल्डिंगें इस्लामिक रिलीजियस आर्किटेक्चर को दिखाती थी। ये बंदरगाह ये जो इबादत गाह थी, पूजा स्थल थे, ये सारी चीज़ें उन्हीं को दिखाती थी। मस्जिद की एक विशिष्ट वास्तुशिल्प रूप में एक विशिष्ट विशेषता थी खंभों के सहारे वाली छत। इसकी जानकारी अब मुस्लिम आर्किटेक्टों ने कर ली थी जो प्रादेशिक विभिन्नताओं से परे थी। मस्जिद का एक खुला प्रांगण सहन होता था जहाँ पर एक फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था और ये प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता था जिसे प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना नमाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति इमाम के लिए पर्याप्त स्थान होता था। बड़े कमरे की दो विशेषताएं थी, आज तक महत्वपूर्ण है। दीवार में एक मेहराब जो मक्का किबला दिशा को संकेत करती है और एक मंच मिंबर जहाँ से जो उलेमा होते हैं, जो मेन नमाज पढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो शुक्रवार की दोपहर की नमाज के समय प्रवचन देते हैं। इमारत की एक जुड़ी और ख़ास विशेषता ये थी कि ये दो चीज़ें बाद के कालों की मस्जिदों में भी हमेशा दिखाई देती हैं। माय डियर, शहरों और गांवों में लोग समय का अंदाज़ा 5 दैनिक प्रार्थनाओं और साप्ताहिक भोजनों की सहायता से लगाते थे। केंद्रीय प्रांगण, ईवान के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का वही स्वरूप न केवल मस्जिदों और मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। उमैयाद ने नखलिस्तानों में मरुस्थली महल बनवाए, जैसे फिलिस्तीन में खिरबत अल मफजार था। उमैयादों ने ये इनके सबसे अच्छे भवनों में से एक था। जॉर्डन में क्रूसायर अमरा जो ठाठदार और विलासतापूर्ण निवास स्थानों
और शिकार और मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम आते थे। महलों को जो रोमन और सासानी वास्तुशिल्प के तरीकों से बनाए गए थे, लोगों ने चित्रों, प्रतिमाओं और पच्चीकारी का भव्य रूप जिसको सजाया। अब्बासियों ने समरा के बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बनाया, जिसका जिक्र हारून अल रशीद से जुड़ी कहानियां और उसके आख्यानों में प्राप्त होता है। बगदाद में अब्बासियों के विशाल महल अथवा काहिरा के फितिमियों के महल लुप्त हो गए, जो अपनी उत्कृष्टता के लिए महत्वपूर्ण थे। ये इमारत सजाने के लिए आमतौर और धार्मिक उदाहरणों को छोटे और बड़े शिलालेखों का प्रयोग किया जाता। कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों की पांडुलिपियों में खुशनवीसी की कला का सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित रखा गया। किताब अल अघानी, कलीला व दिमना, हरीरी की मकामात जैसे साहित्यिक कृतियों को लघु चित्रों से सजाया गया। उनके अलावा पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए चित्रावली की बहुत सी किस्मों की तकनीकी शुरू की गई। इमारतों और पुस्तकों के चित्रों में उद्यान कल्पना पर आधारित पौधों और फूलों के नमूनों का उपयोग किया जाता था। जिन इस्लामिक क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया, उनके इतिहास का मानव सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं: धर्म, समुदाय और राजनीति। इन्हें हम 3 गोले मान सकते हैं। 7वीं शताब्दी में ये तीनों गोले एक दूसरे पर इस तरह से बैठे हुए थे कि वो सब एक गोले जैसे लगते थे। अगली 5 शताब्दियों में ये गोले अलग अलग हुए। 1200 तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य और सरकार पर न्यूनतम हो गया। इस काल में राजनीतिक चीज़ों से जुड़ी कई चीज़ें धार्मिक वैधता जिनको नहीं रही, लेकिन अभी भी धर्म और समुदाय के गोले एक ही थे। निजी मामलों और रीतियों में शरीयत से मुस्लिम संप्रदाय प्रभावित था और यह बात उनकी एकता को महत्वपूर्ण कारण के रूप में परिलक्षित करती थी। इस्लाम के धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे थे, लेकिन वे धार्मिक अस्मिता की परिभाषित कर रहे थे। धर्म और समुदाय के गोलों को अलग अलग होना मुस्लिम समाज के क्रमिक संसारीकरण के जरिए ही संभव था। कुछ दार्शनिक और सूफी ऐसे संसारीकरण की सलाह देते थे। उनका सुझाव था कि नागरिक समाज का धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए और रीतियों और कर्मकांडों की जगह निजी आध्यात्मिकता को ले लेनी चाहिए। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंजेस खुल के सामने आ रहे थे और इस तरह से इस्लामिक लर्निंग एंड कल्चर ने पूरे इस्लाम के स्वरूप को बदला। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।